تو آج کی سب سے پہلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ مریم اورنگزیب کے حوالے سے ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر ہیں، ان کی گاڑی کو خطرناک حادثہ پیش آیا ہے۔ تقریباً 6 سے 7 گاڑیاں جو ہیں ان کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے اور گاڑی کے اندر کون کون موجود تھا، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے اور پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر ہیں جی مریم اورنگزیب، ان کی گاڑی کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ مریم اورنگزیب جو ہیں، ان کے جو قریبی ذرائع ہیں، ان سے اب تک جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ پتہ چلا ہے کہ سینئر صوبائی وزیر کی ٹکر جو ہے، گاڑی کی ٹکر جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوئی ہے، اور جس اسپیسیفک ایریا کے اندر ہوئی ہے وہ ہے جی DHA فیز 5۔ DHA فیز 5 کے اندر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے، جہاں پر بہت ساری متعدد گاڑیاں ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹریفک حادثے میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب جو ہیں، ان کے چہرے پر اور ان کی آنکھ کے اوپر چوٹ آئی ہے۔ اور گاڑی کے اندر کون کون موجود تھا؟ تو اس وقت مریم اورنگزیب گاڑی کے اندر موجود تھیں، ان کے ساتھ ان کی والدہ جو ہیں وہ گاڑی کے اندر موجود تھیں، اور ابھی یہ چیز نہیں پتہ چلی کہ گاڑی ڈرائیو کون کر رہا تھا، یا وہ ان کا ڈرائیور کر رہا تھا یا وہ خود کر رہی تھیں۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ اس وقت گاڑی کے اندر ہی موجود تھیں جس وقت متعدد گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ مریم اورنگزیب کی جو گاڑی ہے اس کے ساتھ 4 سے 5 گاڑیاں جو ہیں وہ آ کر ٹکرائی ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ بڑا ہارفک قسم کا ایک سین وہاں پر کریٹ ہوا ہے۔ کچھ گاڑیاں تباہ ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں۔ قریبی ذرائع جو ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کی جو والدہ ہیں طاہرہ اورنگزیب، وہ بھی گاڑی کے اندر ہی اس وقت موجود تھیں، لیکن ان کے لیے کوئی، آپ سمجھ لیں کہ کوئی غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ضرور ہوا ہے، گاڑیوں کے ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ لیکن مریم اورنگزیب کا بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زیادہ کسی کو چوٹ نہیں لگی، چہرے پر اور آنکھ پر چوٹ آئی ہے، لیکن بہت زیادہ انجریز خدا کا شکر ہے نہیں ہوئی، اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی اس کی تحقیقات مکمل ہوں گی اور جو DHA فیز 5 کے قریب جو تھانہ لگتا ہے، اب جیسے ہی ان کی اپڈیٹ سامنے آئے گی، یہ ٹکر کیسے ہوئی، حادثہ کیسے پیش آیا، کس کا قصور تھا، کون گاڑی چلا رہا تھا، تو تمام تفصیلات جو ہیں وہ جیسے جیسے فردر آتی جائیں گی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بھارت نے جب سے انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان کے ساتھ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جب سے انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹکر لینے کو تیار ہے، تو پاکستان کا جو اجلاس ہوا قومی سلامتی کا، اور اس میں جو سخت فیصلے کیے گئے ہیں، اس میں جو پریویس اعلانات کیے گئے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب جو آگے فردر ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، لیکن جو پہلے میں نے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا، اگر اب تک آپ نے میرا ولاگ نہیں دیکھا تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ اگر بھارت انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، پاکستان اس کو اپنے لیے جنگ یعنی اعلان جنگ کے طور پہ لے گا۔ اور صاف طور پہ ہمارے وزیر دفاع اور ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے ایک بھی شہری کو نقصان ہوا تو ہم انڈیا کے شہر تباہ کر دیں گے، اور ہم اب کی بار ان کو چائے پلا کر نہیں بلکہ ساتھ میں بریانی اور ملک شیک بھی پلا کر جو ہے نا اور کھلا کے اپنے پاس ہی رکھیں گے، ساتھ میں بسکٹ بھی کھلائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ پاکستان نے ریونج کے طور پہ اب بھارت کے ساتھ یعنی رد عمل کے طور پہ پاکستان نے کیا کیا ہے کہ انڈیا کی جو فضائی جو ہماری پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کرتی تھی ان کی ایئر لائنز، اس کو بند کر دیا ہے، تجارت کو بند کر دیا ہے۔ فی الحال اس کا دورانیہ 1 ماہ ہے۔ بھارتی جو تجارت ہے وہ کریش ہوئی ہے، وہاں پر کرائے جو ہیں جو ویجز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اوبویسلی اگر پاکستان کی حدود کو استعمال نہیں کریں گے وہ لوگ فضائی حدود کو، تو پھر ان کو کسی اور ملک کے اوپر سے گزر کے بہت لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کی جو ایئر لائنز ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان کے پیسنجرز بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس وقت بھارت جو ہے ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اب تک کی تازہ تفصیلات کے اکارڈنگلی، جب تک میں رات کے پچھلے پہر یعنی تقریباً سحری کے وقت یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ کو یہ بھی ابھی تک کی تازہ اطلاعات کے اکارڈنگلی بتا دوں کہ کشمیر جو ہے، آکیپائڈ کشمیر جو اس وقت جموں کشمیر ہے ان کے درمیان، اور جو آزاد کشمیر ہے یہاں سے ہماری اور ان کی فورسز کے درمیان اس وقت شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ایک اور آپ کو اہم خبر دے دوں کہ بھارت نے اپنا ایک
चला हुआ कारतूस टाइप का जो है ना जहाज़ उड़ाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान को थोड़ा टेरराइज़ किया जाए, लेकिन JF थंडर 17 देखने के बाद उनका अपना ही तैयारा उन्हीं की हदूद में जाकर गिर गया। अच्छा, इसके अलावा और बड़ी अहम खबरें हैं जो आपको बतानी है। इस वक्त मेरे पास ताज़ा तरीन फुटेजेस मौजूद हैं। पाक फ़िज़ाइया के जो तैयारे हैं उन्होंने एमरजेंसी उड़ानें भरना शुरू कर दी हैं। सरहदों के ऊपर हालात कशीदा हो चुके हैं। पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना इस वक्त खड़ी है और आप अंदाज़ा करें कि भारत के अंदर पहली बार लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है। उनको सैल्यूट अभी मेरी तरफ से। मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ जो ख़ुद अपनी गवर्नमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और सिर्फ आम आवाम नहीं बल्कि ख़ुद मोदी जी की अपनी फ़ौज के जो लोग हैं वो मोदी जी के ऊपर जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सब कुछ आपका किया धरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारतीय फ़ौजी एहलकार क्या कह रहा है, खुद ही सुन लीजिए। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पाकिस्तानी सरहद के करीब भारतीय तैयारा गिर के तबाह हो गया है। उनका मीडिया कह रहा है कि ये वो तैयारे हैं जिन्होंने उड़ान भर के पाकिस्तान जाना था सर्जिकल स्ट्राइक करने, लेकिन उनके तैयारे तो आपको पता है कि आयरोज किस तरह से गिरते हैं, और आपको पता ही है कि उनकी फ़िज़ाइया का क्या हाल है। अभिनंदन का पूरा मामला आपके सामने है। भारत ने एक और मंसूबा बनाया है और वो बेनकाब हुआ है जनाब कि वो पाकिस्तानी कैदियों को जो उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है जाली इनकाउंटर्स करके उनको इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। और भारत जो है वो अपने झूठे बयानिए की बुनियाद पर जारहियत का इर्तिकाब जो है वो कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब उनकी गेम बहुत पुरानी हो चुकी है। अब पुराने टैक्टिक्स में कोई भी आने वाला नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर आपको बताऊं, हंस हंस के आप लोग लोटपोट हो जाएंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तानी जिनको इंडियंस पत्रकार कहते हैं, यानी कि जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं या जो ऐसे भी चेहरे हैं जिनको आपने शायद पहले कभी देखा भी नहीं होगा, वो ज़बरदस्त तरीके से भारतीय मीडिया के ऊपर जाकर, वो पंजाबी में कहते हैं उनकी मंजी ठोक रहे हैं जनाब, उनको ऐसा सा जवाब दे रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि ये साहब कौन है, लेकिन जब इनसे भारतीय एंकर ने सवाल पूछा तो उस बंदे ने कहा कि भाई आप लोगों का तो काम है, और ऐसी जुगत मारी कि मुझे तो ऐसा लगा कि शायद ये कोई फैसलाबादी बंदा है, फैसलाबादी ही इस तरह की जुगतें लगाता है। कहता है कि जनाब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भारत के अंदर अगर कोई इत्तेफाक से खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो उसका इल्ज़ाम भी आप लोग पाकिस्तान पर लगा देते हो। और शायद एंकर को समझ ही नहीं आई कि उस बंदे ने कहा क्या है। क्या कहा, हैव अ लुक। आतंकी हमले का क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान मुल्क को? कि मोहतरमा इल्जाम तो हम पाकिस्तान पे इतने लगा चुके हैं कि अगर इंडिया में कोई खूबसूरत बच्चा भी पैदा हो जाए तो इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है, तो क्या हम इसको भी मान लें फिर? तो जो आपने सुन लिया, मतलब ऐसे हैं जी हमारे पाकिस्तानी के टेंशन के भरपूर माहौल के अंदर भी जो है ना जुगत मारने से बाज नहीं आते। अच्छा, एक छोटे से बच्चे ने ये जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ है, जो उस वक्त वहाँ पे चश्मदीद गवाह था, मोदी हुकूमत का पोल खोल के रख दिया। मीडिया ने जनाब छोटे बच्चे के मुंह के अंदर जनाब ला के इधर माइक रखे, कहा कि बताओ कि उस वक्त क्या क्या हुआ था, और उस बच्चे ने जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट को बेनकाब किया, जैसे उसने बताया कि किस तरह से 2 लोग आए और ये सब कुछ करके चले गए, जबकि नीचे बेस कैंप जो है वो भारतीय फौज का मौजूद था। कैसे उसने उनको बेनकाब किया, हैव अ लुक। हमने तो 2 देखे थे, 2 बंदे। और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30। पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, बास में नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी। क्या सोचा भगवान को याद किया था? क्या सोचा था? भगवान को याद किया था। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है।
अच्छा जी, आपने इस छोटे बच्चे की भी कहानी सुनी, आपने इनके फौजी अहलकार की भी कहानी सुनी, और आपने ये भी देखा कि कैसे उनका तैयारा हड़बड़ाहट में उड़ा और फिर अपनी ही हदूद में गिर गया। और उसके बाद आप मज़ेदार ये एक तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रेंजर्स का अहलकार है भारती, और इसको अरेस्ट किसने किया है? पाकिस्तान की हदूद के अंदर हमारी रेंजर्स ने इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने की रीज़न क्या थी कि जनाब ये सरहद पार करके पाकिस्तानी हिस्से में आ गया था। रेंजर्स का कहना ये है कि हम इसको छोड़ भी देते, लेकिन ये मुसल्ला था, इसके पास राइफल भी थी, इसके पास बाकी तमाम इक्विपमेंट भी था। दैट्स वाई जो है इसको पकड़ के उन्होंने अरेस्ट कर लिया, और ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया बल्कि मुसल्ला तौर पे इसको गिरफ्तार किया है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये है भारत, और ये है भारत की फ़ौज, और ये हैं भारत के हालात। अच्छा, अब मैं आपको फिर एक दफ़ा कह दूं कि जिन लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं, उनके साथ हमारी पूरी तरह से हमदर्दी है, इंसानियत के लिए पूरी तरह से हमदर्दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय गवर्नमेंट, बीजेपी कब तक अपने लोगों का खून बहा के, कब तक अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएगी? और शर्म से डूब मरने का मकाम है कि मैं सोचती थी कि 30 करोड़ से भी ज़ायद मुसलमान हैं भारत के अंदर, 30 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ निकल आए ना बाहर, तो पूरा भारत उलट पलट हो सकता है। मैं सोचती थी कि इनके हालात हमेशा ठीक क्यों नहीं होते, कैसे मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पर, इस तरह के लोगों की वजह से। ये जो इनका एक लीडर है ना, इनकी बड़ी इज्जत मैं करती थी इनकी दाढ़ी की वजह से। अब आप अंदाज़ा करें कि ये जो मोहतरम है, ये उसी बीजेपी की लाइन के ऊपर लग के पाकिस्तानियों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो शैतान है। क्या कह रहे हैं? हैव अ लुक। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये आपने देख लिया। तो इस तरह के मुसलमान जो है ना, वो असल में अपने वहाँ के जो मुसलमान है ना इंडिया के, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब पता है कि फॉल्स फ्लैग है, जब हिंदू होकर अपनी बीजेपी के ऊपर, उनके अपने फौजी होकर उनके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप जैसे मुसलमान अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? ये अब आपको पता चला ना कि कायदे आज़म ने क्यों पाकिस्तान की बात की थी, क्यों पाकिस्तान बनाने की बात की थी। ये इतना डरते हैं हिंदू बनिए से वहाँ पर। और जाते जाते ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भारतीय हाई कमीशन के सामने जनाब पाकिस्तानी अवाम जो है वो एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चलो ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, टिट फॉर टैट, और अब हम कश्मीर जो आपके पास है ना ऑक्यूपाइड, वो भी लेके दिखाएंगे। और किस तरह से सब भीगी बिल्ली बने हुए हैं वो आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय रखते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे दोनों चैनल्स ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।